Good morning, students of class 5. Students, I'm sure all of you are fit and fine. Students, in my last video, I had finished Unit 12 Adjectives of your English grammar book. And today, students, I'm going to start with Unit 13, that is Degrees of Comparison. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 56, Unit 13, Degrees of Comparison. All of you, please turn to page number 56, Unit 13, Degrees of Comparison. Students, now we know what adjectives are. We also know the kinds of adjectives. And today I'm going to start with degrees of comparison. Students, adjective of quality, when they are used to compare with other nouns, they change that form. And those forms are known as degrees of comparison. Students, we use adjectives to compare persons, animals or things. हम adjectives use करते हैं persons, animals और things को compare करने के लिए. And we use degrees of comparison. अब बेटा adjective में भी degrees of comparison होता है और वो हमें अब पता चलेगा कि कब हम एक चीज को compare करेंगे तो हमें कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन लेना है. इफ यू कंपेयर टू थिंग्स तो हमको कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करना है. एंड इफ यू वांट टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स then we need to use which degree of comparison. This we will learn in this unit 13, that is degrees of comparison. Students, there are 3 degrees of comparison. Beta, adjectives में there are 3 degrees of comparison. The first one is positive degree. बेटा फर्स्ट वाली होती है positive degree. The second is comparative degree. And the third degree is superlative degree. First is positive degree, the second is comparative degree, and the third is superlative degree. These are the 3 degrees of comparison which we'll be learning in this unit. So there are 3 degrees of comparison. Beta, degrees of comparison कब use करते हैं? When we compare the adjectives to the other person, animal or thing. Positive degree is used, beta, when there is no comparison. Positive degree is used when there is no comparison, and when we want to show that a particular thing is equal to the other thing in some way. It is equal or not equal. जब हम पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को बस डिस्क्राइब करते हैं और जब वो किसी दूसरी चीज के कंपैरिजन में इक्वल हो. सो तब हम उस कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री बेटा वी यूज व्हेन वी कंपेयर 2 persons, 2 animals और 2 things. कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? जब हम 2 persons, 2 animals या 2 things को कंपेयर करते हैं. And superlative degree beta when we is used when we compare more than 2 things, animals or persons. So these are the 3 degrees of comparison. First is positive degree. Positive degree is used when there is
नो कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री बेटा जब कोई कंपैरिजन नहीं होता, हम बस किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री के पहले हमेशा ए, एन, एस ऐसे वर्ड्स आते हैं. ये आपको याद रखना है. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता. हम जब यूज करते हैं, जब कोई चीज किसी के इक्वल होती है, तब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं. द सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री बेटा कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स, टू थिंग्स और टू एनिमल्स. एंड स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन. कंपैरेटिव डिग्री के हमेशा बाद कौन सा वर्ड आता है? THAN, देन. पॉजिटिव डिग्री के पहले ए, एन, एस ये सारे वर्ड्स आते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा THAN देन आता है. और पॉजिटिव डिग्री कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. हम सिंपली किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं. एंड जब हमको कोई कंपैरिजन नहीं करना है, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे बेटा? पॉजिटिव डिग्री. और पॉजिटिव डिग्री के पहले कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? ए, एन, वेरी, एज ऐसे वर्ड्स आते हैं व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं बेटा? जब हमको कोई भी दो एनिमल्स, दो पर्सन्स, दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना होता है. एंड कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. THAN देन हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है. Whereas the third degree students is the superlative degree. ये greatest degree होती है. And it is used students when there is a comparison more than two persons, two animals या thing. दो से ज्यादा का जब comparison होगा, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे बेटा? superlative degree. And superlative degree के हमेशा पहले THE द आता है. द आता है, ये आपको याद रखना है. पॉजिटिव डिग्री के पहले ए, एन, वेरी, एज आता है जनरली. कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है. एंड पॉजिटिव डिग्री के पहले हमेशा THE द आता है. एंड ये ग्रेटेस्ट डिग्री है, हाई मतलब सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री है तीनों में. और सुपरलेटिव हम कब यूज करते हैं बेटा? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन मोर देन बिटवीन अमंग मोर देन टू पर्सन, टू थिंग्स और टू एनिमल्स. दो से ज्यादा का जब कोई भी चीज में कंपैरिजन हो, तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे. हाँ, पॉजिटिव डिग्री कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. एंड पॉजिटिव डिग्री के पहले हम ए, एन, वेरी, एज ये सब आ सकता है. कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करेंगे? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, टू एनिमल्स और टू ऑब्जेक्ट्स. एंड कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा THAN देन आता है, ये आपको याद रखना है. एंड सुपरलेटिव डिग्री इज यूज जब दो से ज्यादा का कंपैरिजन हो, दो से ज्यादा लोगों में, एनिमल्स में, थिंग्स में कंपैरिजन हो, तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स, टू थिंग्स, टू एनिमल्स. जब मोर देन टू का कंपैरिजन हो, तो कौन सी होगी? सुपरलेटिव. एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट डिग्री. नाउ आई विल एक्सप्लेन विद सम examples. So there are three degrees of comparison: positive degree, comparative degree and superlative degree. Okay. Now students, look at the sentence. Copper is an expensive metal. Fine. The second sentence is silver is more expensive than copper. The third sentence is gold is the most expensive
metal. Now students, look at the three examples. The first sentence is copper is an expensive metal. अब बेटा इसमें जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या है? एक्सपेंसिव. Now in the first sentence, copper is an expensive metal. We are just describing the metal copper. हम बस copper के बारे में बता रहे हैं कि it is an expensive metal. And copper के ये expensive के पहले क्या आया बेटा? AN. As said, positive degree के पहले AN, very, as ये words आते हैं generally. ठीक है? And यहाँ पे कोई comparison है copper का किसी दूसरे metal से? कॉपर का कोई कंपैरिजन नहीं है. बस हम वी आर डिस्क्राइबिंग द मेटल कॉपर दैट दिस इज एन एक्सपेंसिव मेटल. तो एक्सपेंसिव के पहले एन है और एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है. तो ये कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है बेटा? कौन सी डिग्री ऑफ कंपैरिजन है? दिस इज द पॉजिटिव डिग्री. इसमें कॉपर का किसी से सेंटेंस में कोई कंपैरिजन है? कॉपर इज एन एक्सपेंसिव मेटल? नो, देयर इज नो कंपैरिजन. वी आर जस्ट डिस्क्राइबिंग द मेटल कॉपर. Fine. Whereas in the second sentence, if you look at the second sentence, silver is more expensive than copper. अब इसमें जो comparative degree आई है वो क्या आई है? More expensive. Now you see there is a comparison between two metals, silver and copper. As explained, comparative degree कब use होती है? When there is a comparison between two persons, two animals or two ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे सिल्वर और कॉपर दो मेटल का कंपैरिजन हो रहा है कि कॉपर से भी एक्सपेंसिव क्या है? सिल्वर है. सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू मेटल्स. तो मोर एक्सपेंसिव वर्ड यूज हुआ एंड दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री. नाउ एज आई हैड एक्सप्लेन, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा इट इज फॉलोड बाय द वर्ड देन. बेटा आपको याद रखना है जब भी THAN देन आएगा किसी भी डिग्री के बाद तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगी. देन हमेशा आता ही फॉलो करता है कंपैरेटिव डिग्री को. बिकॉज दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है. सिल्वर इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉपर. तो कौन सा वर्ड फॉलो कर रहा है बेटा कंपैरेटिव डिग्री को? देन इज ऑलवेज there after the comparative degree. Please keep this in mind. Now, अब बेटा आपको एक और चीज याद रखनी है. जो बड़ी स्पेलिंग्स वाले वर्ड होते हैं which have got more than 2 syllables, जो भी स्पेलिंग्स में आप प्रोनाउंस करते हो तो उसमें 2 से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं तो उनका कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा मोर लगता है. एंड सुपरलेटिव डिग्री में उन वर्ड के पहले क्या लगता है? मोस्ट. जनरली तो अभी हम आई विल बी एक्सप्लेनिंग द रूल्स. जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री में आर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लास्ट में ER लगाते हैं. कंपैरेटिव डिग्री में जब कोई वर्ड चेंज करते हैं तो हम उसमें लास्ट में R लगाते हैं और सुपरलेटिव में ER. बट देयर आर रूल्स कि कौन सी स्पेलिंग में R लगेगा, कौन सी में ER लगेगा, कौन से में Y हटेगा, किस में मोर लगेगा, किस में मोस्ट. दिस विल बी लर्निंग इन द रूल्स इन दिस यूनिट. बट अभी एज आई एम स्टार्टिंग द यूनिट, अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूं कि व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री, व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री एंड व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री. तो बेटा जो बड़ी स्पेलिंग्स होती है जिसमें मोर देन 2 सिलेबल्स होता है उन वाली स्पेलिंग्स में कंपैरेटिव डिग्री में पहले क्या लगता है? मोर. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है बेटा? मोस्ट. वर्ड्स कौन से? इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल. हाँ, ये सारे जो बड़े मोर देन बड़ी स्पेलिंग्स हैं जिसमें मोर देन 2 सिलेबल्स होते हैं उनमें मोर और मोस्ट लगता है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में. जो पॉजिटिव डिग्री है उसके पहले. ये आप याद रखिएगा. एंड देन आई ऑल्सो टेल यू द ट्रिक टू फाइंड हाउ टू फाइंड दैट हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड. सो silver is more expensive than copper. यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज हुई है? कंपैरेटिव. व्हाई वी हैव यूज्ड कंपैरेटिव डिग्री स्टूडेंट्स? बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 metals, silver and copper. And बेटा कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद बेटा कौन सा वर्ड आता है? देन. ये आपको याद रखना है. नाउ the third example is
गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल. अब इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स? सुपरलेटिव. नाउ स्टूडेंट्स, द थर्ड सेंटेंस इज गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल. नाउ look at the sentence carefully. Gold is the most expensive metal. अब बेटा gold is the most expensive metal मतलब जितने भी metals हैं उन सब में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कौन है? गोल्ड. तो गोल्ड को सारे मेटल से कंपेयर किया जा रहा है. नॉट ओनली 1 2 बट ऑल दी मेटल्स. गोल्ड इज दी मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल मतलब कि जितने भी मेटल है उन सब में सबसे कॉस्टली कौन है बेटा? गोल्ड. ना सो ये कौन सी डिग्री यूज हुई है? सुपरलेटिव डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द वर्ड द. मोस्ट एक्सपेंसिव के पहले कौन सा वर्ड आया है? द. यू नीड टू कीप इन माइंड बेटा कोई भी सेंटेंस अगर जब सुपरलेटिव डिग्री उसमें यूज होगी तो उसके पहले इट इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द वर्ड द. हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले जिसमें भी द आएगा आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि द लगा है मतलब कि ये सुपरलेटिव डिग्री है. अगर कोई भी डिग्री के बाद देन लगा है तो वो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री. आज अगर डिग्री के पहले ए एन वेरी एज ये वर्ड्स है तो वो पॉजिटिव डिग्री. नाउ स्टूडेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री. तो हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. जब कोई चीज को क्या तो आप किसी के इक्वल मानते हैं, जैसे एज ग्रीन एज ग्रास. जितनी भी सिमिलीज होती है आपकी, एज सॉफ्ट एज कॉटन, है ना, एज हार्ड एज डायमंड. तो ये जितनी भी सिमिलीज होती है एज वाले, जहां एक चीज को दूसरे के इक्वल माना जाता है वहां हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज होती है. उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है. आप किसी चीज को किसी के इक्वल मान सकते हो. वहां खाली डिस्क्राइब करती व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन. एंड जनरली पॉजिटिव डिग्री के पहले ए एन एज वेरी ये वर्ड्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीमा इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल. हार्ड वर्किंग के पहले कौन सा आया? अ. तो अ और हार्ड वर्किंग पॉजिटिव डिग्री. गॉट इट? नाउ सेकेंड एग्जाम्पल बेटा, सिल्वर इज मोर एक्सपेंसिव देन कॉपर. दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री. सेकेंड बेटा कंपैरेटिव डिग्री होती है. एंड व्हेन वी यूज कंपैरेटिव डिग्री व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स. जब भी किसी 2 चीजों में कंपैरिजन हो, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वंशिका इज टॉलर देन अंकित. तो वंशिका और अंकित 2 बच्चों में कंपैरिजन हो रहा है कि वंशिका अंकित से टॉलर है. सो 2 लोगों में जब भी कंपैरिजन होगा तो हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री. एंड रिमेंबर बेटा कंपैरेटिव डिग्री के हमेशा बाद में क्या आता है? देन. द थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री. ये ग्रेटेस्ट डिग्री होती है बेटा. और इसमें सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा इसके पहले द आता है. और आपको ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री को कब यूज करते हैं? जब 2 चीजों से, 2 पर्सन्स, 2 एनिमल्स, 2 थिंग्स से ज्यादा में कंपैरिजन हो तब हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं बेटा? सुपरलेटिव डिग्री. सो पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता. कंपैरेटिव डिग्री में हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन, 2 थिंग्स और 2 एनिमल्स. एंड कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. द थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री. वो कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन इन मोर देन 2 पर्सन्स, 2 थिंग्स, 2 एनिमल्स. जब 2 से ज्यादा में कंपैरिजन हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. एंड सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा पहले क्या आता है बेटा? द. सो आई होप स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत कुछ आपको समझ में आया. नाउ स्टूडेंट्स, now look at another example.
Now, you are a cheerful girl. This is the sentence. इसमें जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या है बेटा? cheerful. क्योंकि हम खाली एक गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, तो ये क्या है बेटा? पॉजिटिव डिग्री. और इसके cheerful के पहले क्या आया है? अ आया है cheerful के पहले. दैट इंडिकेट्स कि यू आर अ cheerful गर्ल. ठीक है. अब जो भी पॉजिटिव डिग्री उसके पहले ए, एन, एज, वेरी ये यूज होता है. और कब यूज करते हैं? जब कोई भी कंपैरिजन नहीं हो. सेकेंड, these are all examples of positive degree. She is I'm explaining only the positive degree. She is an industrious means hardworking student. Now, look at the sentence. She is an industrious student. In this, the positive degree is industrious. We are describing a student who is very industrial. There is no comparison. और industrious के पहले क्या आया बेटा? N. तो positive degree कब यूज करते हैं? When there is no comparison. और इनके पहले A, N, S जितनी भी सिमिलीज हैं वो हमेशा कौन सी है बेटा? हमेशा they are the positive degree. The shirt is white. It is as white as milk. Now, look at the third sentence. The shirt is white. It is as white as milk. इसमें जो positive degree वो क्या है? White है. The third sentence has got, there are two sentences in the third example. The shirt is white. This is the positive degree. Shirt को describe कर रहे हैं white. अब it is as white as milk. अब देखो दो चीजों को इक्वल बता रहे. कितनी white है? As white as milk. तो यहाँ पे as आया है पहले, तो ये कौन सा है? इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है, बट बता रहे हैं कितनी है? इक्वल टू मिल्क. इट इज एज वाइट एज मिल्क, है ना. तो जब भी सिमिलीज एज वाइट एज मिल्क, एज ग्रीन एज ग्रास, है ना, एज रेड एज बीटरूट, तो बेटा ये सारी जो सिमिलीज है ये हमेशा पॉजिटिव डिग्रीज में होती है बेटा, जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होता है. बताते हैं कि एक चीज दूसरे चीज के इक्वल है. नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिग्री. आयरन इज अ यूजफुल metal. Iron is as useful as copper. Now look at the fourth example. Iron is a useful metal. ये यूजफुल क्या है? पॉजिटिव डिग्री. और उसके पहले क्या आया है बेटा? आयरन इज अ यूजफुल मेटल. यूजफुल पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि आयरन को डिस्क्राइब कर रहा है यूजफुल, कि एक यूजफुल मेटल है. नाउ द सेकंड सेंटेंस इज आयरन इज एज यूजफुल एज कॉपर. आप बता रहे आयरन कितना यूजफुल है? इस किसके इक्वल है? कॉपर के इक्वल है. और पहले क्या आया है? एज आया है. तो यूजफुल कौन सा है बेटा? पॉजिटिव डिग्री. और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? जनरली कोई एक चीज ज्यादा होती है और एक चीज कम होती है. कंपेयर करते हैं, जहां पे दोनों इक्वल है वो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री.
जहां पे एक कुछ ज्यादा एक कम डिफरेंस है वो कंपेरेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री तो ग्रेटेस्ट डिग्री होती है, उसमें मतलब कि वो सबसे ज्यादा। ये आपको दिमाग में रखना है। और पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं है, उसको हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन। और जब हमें कोई एक चीज दूसरे चीज के इक्वल बतानी होती है तब हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं बेटा? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री के जनरली पहले ए, एन, एस, वेरी, ये सब आता है। सो आई होप द पॉजिटिव डिग्री इज क्लियर टू यू। Now I explain the comparative degree. When do we use comparative degree? When there is comparison between two things. Now, the first example, students, is the Agra fort is larger than the Red Fort. Now students, look at this sentence. The Agra fort is larger than the Red Fort. यहाँ पे किन दो चीजों में कंपैरिजन है बेटा? बिटवीन द आगरा फोर्ट एंड द रेड फोर्ट। और जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है? लार्जर। लास्ट में ईआर, जनरली कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट में आर या ईआर लगा होता है। और वर्ड के पहले अगर मोर देन 2 सिलेबल वर्ड है तो उसके पहले क्या लगा होता है? मोर, MORE, मोर। सो और अब आप ध्यान से देखो, आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री कौन सा वर्ड है? देन। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन, क्योंकि वो दो चीजों में कंपैरिजन करता है, देन। और यहाँ पे किस में कंपैरिजन है? द आगरा फोर्ट एंड द रेड फोर्ट। नाउ second example is Sakshi is more hard working than her friend. Now, Sakshi is more hardworking than her friend. The comparative degree is more hardworking. Now students, you need to keep in mind जो बड़े स्पेलिंग्स वाले बिग वर्ड्स होते हैं विच हैव गॉट मोर देन 2 syllables, उनमें कंपैरेटिव डिग्री में पहले क्या लगता है? मोर, एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगता है। नाउ द इजिएस्ट वे टू फाइंड द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड इज, बेटा कोई भी वर्ड में आपको पता करना है कि कितने सिलेबल्स हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज you have to speak that word loudly keeping your palm in front of your mouth. कोई भी वर्ड को आपको पता करना है इसमें कितने सिलेबल हैं, तो बेटा आप अपना पाम अपने फेस के सामने रखिए एंड स्पीक दैट वर्ड लाउडली। और आपके हैंड में जितनी बार हॉट पफ ऑफ एयर आपको फील होगा, दैट मीन्स कि उस वर्ड में उतने सिलेबल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, आप बोलो कितनी बार आपको पफ ऑफ एयर फील, जितनी बार आपको हॉट पफ ऑफ एयर फील होगा
दैट मीन्स उस वर्ड में उतने सिलेबल्स हैं. फाइन. और अगर मोर देन 2 सिलेबल्स, अगर आपको हाथ में मोर देन 2 बार हॉट पफर फील होता है, तो आपको ये याद रखना है कि वो जो बड़े वर्ड्स हैं उनमें कंपैरेटिव डिग्री में पहले आपको मोर लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाना है. नाउ हार्ड वर्किंग, आपको मोर देन 2 टाइम्स पफर फील हुआ, तो अब इसीलिए हमने इसमें कौन सा वर्ड यूज किया है बेटा? मोर, कंपैरेटिव डिग्री में. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जो बड़े स्पेलिंग्स वाले वर्ड हैं उनमें, जिनमें मोर देन 2 सिलेबल्स हैं, उनमें कंपैरेटिव डिग्री में हम आगे क्या लगाते हैं बेटा? मोर. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. सो साक्षी इज मोर हार्ड वर्किंग देन हर फ्रेंड. यहाँ साक्षी को किससे कंपेयर किया गया? उसकी फ्रेंड से. तो देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स. एंड जो मोर देन 2 सिलेबल वाला वर्ड है, इसलिए उसके पहले क्या लगाया है बेटा? दी वर्ड मोर. सो आई होप स्टूडेंट्स अभी आपको पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल. These answers are more difficult than those written by you. Now, students, the third sentence is, these answers are more difficult than those written by you. The comparative degree is more difficult. Difficult के पहले हमने more क्यों लगाया बेटा? Because difficult is a word which has got more than 2 syllables. तो उसके आगे हमने क्या लगाया? More. And look at this sentence again. These answers are more difficult than those written by you. और more difficult के बाद क्या है? Then है, which indicates that there is comparison between 2 things. तो these answers and those written by you, 2 answers में comparison हो रहा है कि एक वो answers, हाँ, these answers, जो these answers and those written by you, ये 2 तरह के answers में comparison है. एक जो आपने answers लिखे हैं उससे ये जो भी आंसर्स हैं वो डिफिकल्ट है, ये कंपैरिजन है, मोर डिफिकल्ट, एंड फॉलोड बाय द वर्ड देन. सो कंपैरेटिव डिग्री बेटा कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, 2 पर्सन्स और 2 एनिमल्स. एंड कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज फॉलोड बाय द वर्ड देन. और कंपैरेटिव डिग्री जनरली देयर आर रूल्स कि कैसे वो फॉर्म होती है. जनरली उनके एंड में आर, ई आर, ये सब पॉजिटिव डिग्री में लगता है. बट जो बिग स्पेलिंग्स है, दैट इज विच हैज गॉट मोर देन 2 syllables, उनमें हम आगे क्या लगाते हैं बेटा? मोर. सो दिस यू शुड कीप इन माइंड स्टूडेंट्स. एंड नाउ सुपरलेटिव डिग्री आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे अहेड.